Hello students, good morning. Jai Swaminarayan, all of you. Welcome to class 3 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your math teacher. Now, today I will take revision of lesson number 6, 7 and 8. So now, first all of you look at in lesson number 6. So now all of you look at in lesson number 6. So today we will take revision of lesson number 6, 7 and 8. So what we had learned our last classes in this lesson, we had learned first recall exercise. In this recall exercise we had learned now look at here I have birds. That birds is divided into the equally two groups. How many groups? Two groups. How many birds? 6 birds. So when we are making the two groups of the birds, so each group coming the birds is the 3. So 6 divided by 2 equal to 3. 6 divided by 2 equal to 3. Then after we had learned the finding numbers of groups by division. If something is divided into the equal groups, you can use the division to find how many in each group. Example number 1. Suppose you have to divide 12 sweets equally among the 4 friends. You have a divide to find how many each getting. How many sweets? 12 sweets, and we have a 4 friends. So each friend how many getting the sweets? So each friend getting the 3 sweets. How 3? So we are divide 12 divided by 4. When we are 12 divided by 4 divide, so we will get each friend getting the 3 sweets. This is the division. Then after we had learned the division as the repetition subtraction. Now look at here. How did you divide 12 sweets into the 4 of the group? We repeatedly subtracted 4 from the 12. We are subtracted 4 from the 12 up to 0. जब हमें क्या करना होता है, रिपीटेशन सब्ट्रैक्शन मेथड यूज करते हैं, तब हम क्या करते हैं, जो भी नंबर है उसको हम माइनस करते हैं जब तक 0 नहीं आता है. जैसे 16 डिवाइडेड बाय 8 है, तो हम 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे जब तक आंसर 0 नहीं आता है. तो 16 में से 8 माइनस करेंगे, फिर 8 बचता है, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचता है, 0 बचता है. तो हमने 8 को कितने टाइम्स माइनस किया है, 1 2. तो हमें आंसर कितना मिल गया है, 2. 16 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 2 आता है. तो ये हमने रिपीटेशन मेथड किया था, उसमें से कुछ एग्जाम्पल भी किए थे. नाउ 4 in the 16. 4 in the 16 मीन 16 के टेबल में 16 के टेबल में 4 वाले प्लेस पे क्या आता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 16 को 4 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा. 16 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है, 4 आता है. 5 in the 20, मतलब 20 के टेबल में 5 वाले प्लेस पे क्या आता है, तो इसके लिए हमें 20 को 5 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा. 20 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है, 4 आता है. सो दैट ऑल एग्जाम्पल इज लाइक दैट. Then multiplication and division. The relation between the multiplication and division we had learned. Now look at here. 3 into 4 equal to 12. 3 into 4 equal to 12. When 12 is divided by 3 we will get 4 and 12 is divided by 4 we will get 3. 12 को हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 मिलता है, एंड 4 को 3 के साथ डिवाइड करते तो आंसर 4 मिलता है, एंड 12 को 4 के साथ डिवाइड करते तो 3 मिलता है. मतलब ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन. देन आफ्टर वी हैड लर्न द एक्सरसाइज 6.2. 6.2 में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन है, जो हमने अभी किया था. ये देखो यहाँ पे सॉल्व किए, ये देखेंगे 7 into 6 इक्वल टू 42. अगर हम 42 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे, ये जो 42 है 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें 6 मिलेगा, और ये 42 हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलता है, 7 मिलता है. तो ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. देन आफ्टर वी हैड लर्न द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन.
property of division. When we are divide itself number, so we will get question is the 1. जब हम itself number के साथ डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो हमें क्वेश्चन मिलता है 1. So this is property number 1. When we are divide 1 in any number, we will get answer is itself number. Means 3 को हम 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, 6 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा. मतलब जो भी नंबर है वो नंबर हम 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें वही नंबर मिलता है. Then when we are multiply 0 in any number, when we are divide 0 in any number, we will get answer is the 0. When we are divide 0 any number, we will get answer is the 0. 3 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 मिलता है, 3 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिलता है. मतलब जो भी नंबर है उसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन मिलता है 1, एंड 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना मिलता है, 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें वो नंबर मिलता है. Now next is the division using a table. You know that the 12 divided by 4 equal to 3. Means that there is the 3 4 in the 12. मतलब क्या होता है, 12 डिवाइडेड बाय 4 करते तो हमें आंसर कितना मिलता है, 3 मिलता है. उसका मतलब क्या होता है कि 12 के टेबल में 4 वाले प्लेस में 12 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलता है, 3 मिलता है. मतलब क्या होगा, 3 4 इन द टेबल. So you find 27 divided by 3. You have to find how many 3s there in the 27. अभी हम देखेंगे कि 27 3 के टेबल में 27 कौन से प्लेस पे है. तो 3 के टेबल में 27 कौन से प्लेस पे है, 9 वाले प्लेस में है. तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 9 मिलेगा. यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 4 है. मतलब हम क्या करेंगे कि 4 के टेबल में 12 कौन से वाले प्लेस पे है, तो 4 के टेबल में 12 कौन से प्लेस पे आता है, 3 वाले प्लेस में. तो आंसर आता है 3. देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेबल यूज करके हमने डिवीजन किया है. फॉर एग्जाम्पल 40 डिवाइडेड बाय 5 है. तो 5 के टेबल में 40 कौन से वाले प्लेस पे आता है, तो 5 के टेबल में 40 कौन से प्लेस पे आता है, 8 वाले प्लेस पे आता है. सो फॉर दैट ऑल ऑफ यू नीड नाइसली लर्न द टेबल. ओके, टेबल को लर्न होना जरूरी है ये जो सम है उसको सॉल्व करने के लिए. अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल 49 डिवाइडेड बाय 7. 49 डिवाइडेड बाय 7 मतलब क्या होता है, 7 के टेबल में 49 कौन से प्लेस पे आता है, तो 7 के टेबल में 49 कौन से प्लेस पे आता है, 7 वाले प्लेस पे. तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 7. दे आर ऑल द बाय यूजिंग द डिवीजन बाय यूजिंग द टेबल. ये जो सभी एग्जाम्पल है ये क्या है, टेबल यूज करके हमने सॉल्व किया था. देन लॉन्ग डिवीजन. मीन्स देखो 30 डिवाइडेड बाय 5. 30 डिवाइडेड बाय 5. सो यहाँ पे देखो 30 है तो 3 हमने ये वाली मेथड यूज करके हमने डिवीजन को सॉल्व किया है. 5 के टेबल में 30 कौन से प्लेस पे आता है, 6 वाले. तो हमें आंसर 6 मिल गया. तो ये हमने क्या किया है, डिवीजन को ये वाले मेथड यूज करके सॉल्व किया. देन लुक एट हियर. देन आफ्टर वी हैड सॉल्व द एक्सरसाइज 6.4. देन यहाँ पे देखो 2 डिवाइडेड बाय 18 है. नाउ 2 इज द 1 डिजिट नंबर एंड 18 इज द 2 डिजिट नंबर. 1 ये क्या है, 2 से स्मॉल है तो हम 18 लेंगे. तो 2 के टेबल में 18 कौन से प्लेस पे आता है, 9 वाले. तो यहाँ पे क्वेश्चन में 9 होगा और यहाँ पे 18 माइनस 18 0 होगा. क्या होगा, 18 माइनस 80 0 होता है. तो ये सभी एग्जाम्पल एज इट इज सेम है. यहाँ पे देखो ये 9 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये 9 यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमने 18 पूरा नंबर लिया है. तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 9 आएगा. Then after we had learned the division with remainder. सभी नंबर
वो नंबर के साथ टोटली डिवाइड नहीं होता, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है, तो उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। जैसे 10 को हमने 4 के साथ डिवाइड किया तो 10 4 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। हम क्या करेंगे? नियरेस्ट वैल्यू लेंगे। इसकी नियरेस्ट वैल्यू क्या है? 8। 8 कौन से प्लेस पे है? 2 है। और 10 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचता है? 2 बचता है। मतलब हमें क्वेश्चन कितना मिल गया है? 2 और रिमाइंडर हमें 1 मिल गया है। तो इस तरह हमने क्या किया था? एग्जाम्पल को सॉल्व किए थे। देन एक्सरसाइज 6.5 में हमने रिमाइंडर और डिवीजन निकाला था। देन यहाँ पे करेक्ट और रॉन्ग को जो जो करेक्ट है उसको राइट किया है और जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग किया था। देन यहाँ पे हमने डिवीजन मेथड किया था बाय यूजिंग दैट लॉन्ग डिवीजन, और यहाँ पे हमने क्वोशंट और रिमाइंडर को निकाला था। देन एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर डी में भी सेम हमने क्या किया था? डिवीजन मेथड यूज करके उसको सॉल्व किया था। देन आफ्टर वी हैड डन द एक्सरसाइज 6.6 को भी हमने ऑलरेडी डन किया हुआ है। सबको एग्जाम्पल आते होंगे, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। देन मैथमेटिक्स ए भी हमने पढ़ा था, ये हमने फिर से रिवीजन में एक बार किया था। एंड मैथमेटिक्स बी ये भी हमने रिवीजन में 1 टाइम किया हुआ है। तो आई होप ऑल ऑफ यू नाइसली अंडरस्टूड लेसन नंबर 6। नाउ लुक एट लेसन नंबर 7। अभी हम लेसन नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए एक बेसिक रिवीजन ले रही हूँ। ऑलरेडी आपका रिवीजन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे है मोर डिवीजन। ये क्या है? ये भी सेम है, डिवीजन है, लेकिन यहाँ पे मोर डिवीजन। यहाँ पे 2 डिजिट नंबर ने डिवाइड करना है 1 डिजिट के साथ। ठीक है, नाउ 6 ये 1 डिजिट है तो हम पहले 1 डिजिट ही लेंगे। तो अगर हम 6 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे, 6 यहाँ पे देखो ये दूसरी मेथड है, ये ऐसे यहाँ पे इस मेथड से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते। 69 डिवाइडेड बाय 3 है, तो 3 के टेबल में 6 आता है। यस, 6 3 के टेबल में 2 वाले प्लेस पे आता है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया और 6 माइनस 6 0 कर दिया। नाउ ब्रिंग आउट द 9। 9 को हम नीचे लेंगे। अभी 9 3 के टेबल में आता है। यस, 9 3 के टेबल में 3 वाले प्लेस पे आता है, तो 9 माइनस 9 कितना होता है? 0 होता है। तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा? 23 हमें आंसर मिल जाएगा। इस तरह हमने एक्सरसाइज 7.1 को हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, 1 एग्जाम्पल आपको इसमें से एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 90 है, 90 डिवाइडेड बाय 3 है। ठीक है, अभी 3 के टेबल में 9 आता है। यस, 3 के टेबल में 9 आता है 3 वाले प्लेस पे, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे 9 माइनस 9 0 करेंगे। नाउ ब्रिंग आउट 0। 0 को हम नीचे लेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, व्हेन वी आर डिवाइड 0 इन एनी नंबर वी विल गेट आंसर इज द 0, सो विल राइट हियर 0 एंड हियर 0 माइनस 0। 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमें आंसर कितना मिल गया? 30 हमें आंसर मिल गया। तो इसका आंसर क्या है? 30 आंसर हो गया। देन आफ्टर वी हैड लर्न द एक्सरसाइज 7.2 में सेम हमने डिवीजन मेथड ही यूज करके इसको डिवीजन किया था। मतलब ये क्या है? डिवीजन विथ रीग्रुपिंग है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है 75 डिवाइडेड बाय 3, तो ये भी 2 डिजिट है और यहाँ पे 1 डिजिट है। पहले एग्जाम्पल में क्या था कि हमने फर्स्ट वाले डिजिट को डिवाइड किया तो यहाँ पे 0 आता था, लेकिन यहाँ पे क्या है? जैसे 75 डिवाइडेड बाय 6 है। जब हम 7 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं। तो हम 7 की नियरेस्ट वैल्यू देखेंगे। नियरेस्ट वैल्यू क्या है? 3 के टेबल में 7 की नियरेस्ट वैल्यू 3 के टेबल में क्या है? 6 है। तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे। 7 में से 6 क्या कितना गया? बचा 1। अभी ब्रिंग आउट 5। 5 क्या है? 5 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? 15 आ गया। अभी 3 के टेबल में 15 आता है। यस, 3 के टेबल में 15 5 वाले प्लेस पे आता है, तो 15 माइनस 15 कितना होता है? 0 होता है। तो आंसर कितना मिल जाएगा? 25। उस तरह हमने एक्सरसाइज 7.2 को भी सॉल्व किया था बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड यूज करके। ठीक है, then after we had learned the division of 3 digit number without regrouping.
हमने 3 डिजिट नंबर को सॉल्व किया था विदाउट रीग्रुपिंग। मतलब यहाँ पे रीग्रुपिंग नहीं है, मतलब जैसे 488 डिवाइडेड बाय 4 है तो ये 3 डिजिट है और ये 1 डिजिट है। ये सेम 2 डिजिट को जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे थे। अभी 4 के टेबल में 4 फर्स्ट वाले प्लेस पे आता है तो यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे 4 - 4 कर दिया, 0 आ गया। अभी 8 को नीचे लिया है, 8 4 के टेबल में 2 वाले प्लेस पे आता है, यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे 8 - 8 0 कर दिया। देन 4 के टेबल में 8 2 वाले प्लेस पे आता है, यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे 8 - 8 0 कर दिया। तो हमें आंसर कितना मिल गया है 122 हमें आंसर मिल गया। रिमाइंडर कितना है हमें 0 मिल गया। Then same is exercise 7.3। exercise 7.3 इसके तरह ये सेम है तो ये भी हमने सॉल्व किए हैं। Then division of 3 digit number with regrouping। अभी यहाँ पे क्या है with regrouping है तो हमने ये भी किया था with regrouping। तो एग्जाम्पल देखो 640 है। अभी 640 में 6 से 8 से स्मॉल है तो हम क्या लेंगे 64 लेंगे। 64 8 के टेबल में कौन से प्लेस पे आता है 8 वाले प्लेस पे, तो हमने 0 64 - 64 0 हो गया और यहाँ पे 8 लिख दिया। अभी यहाँ पे 0 को नीचे लेंगे। नाउ डिवीजन property of division, when we are divide 0 in any number we will get answer 0। तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया और 0 - 0 0 हो गया तो हमें आंसर कितना मिल गया 80 मिल गया। उस तरह हमने एक्सरसाइज 7.4 को भी सॉल्व किया था। ठीक है, सो दिस इज एक्सरसाइज 7.4 सेम एज इट इज। देन डिवीजन विथ रिमाइंडर 2 and 3 डिजिट नंबर। 2 और 3 डिजिट को रिमाइंडर के साथ हमने इसको सॉल्व किया था, मतलब इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है। नाउ लुक एट हियर वन एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन। 405 डिवाइडेड बाय 5 है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे 405 डिवाइडेड बाय 5 है। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी देखो 5 के टेबल में 4 जो है ये 5 से स्मॉल है तो हम क्या लेंगे 40 लेंगे। 5 के टेबल में 40 आता है, यस 8 वाले प्लेस पे है तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे और यहाँ पे 40 - 40 0। नाउ ब्रिंग डाउन द 5 को नीचे लेंगे। अभी 5 के टेबल में 5 आता है, यस 1 वाले प्लेस पे तो 5 - 5 0। तो हमें रिमाइंडर कितना मिल गया है 0 एंड हमें क्वेश्चन कितना मिल गया है 81 मिल गया है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये है एग्जाम्पल नंबर मैंने 27 ऐसे आपको सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, देन डिवीजन बाय 10। जब हम क्या करते हैं किसी नंबर को 10 के साथ डिवाइड करते हैं, जो भी 1 वाले प्लेस पे वैल्यू होती है वो रिमाइंडर बचता है और बाकी के रेस्ट नंबर क्या होते हैं हमारा क्वोशंट होता है। कितने भी डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, अगर 4 भी डिजिट है मतलब 6 8 2 5 है और उसको हमने 10 के साथ डिवाइड करेंगे, ये 4 डिजिट है तो इसमें से जो 1 वाले नंबर पे है 5 है वो हमें क्या मिल जाएगा रिमाइंडर मिल जाएगा और क्वेश्चन में हमें आ जाएगा 6 8 2। मतलब जितने भी नंबर रेस्ट नंबर हो जाएंगे वो हमें मिल जाए क्वेश्चन एंड जो 1 वाले प्लेस पे वैल्यू होती है वो हमें क्या मिलता है रिमाइंडर मिलता है जब हम 10 के साथ किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तब। Then after we had learned that divide by 10. This also done our last class. So when we are divide 10 in any number, so whichever the number in the one place, we will get the remainder and rest number we will get the question. जो भी क्या होता है 1 वाले प्लेस पे वैल्यू होती है वो हमें रिमाइंडर मिलती है एंड वॉट एवर द नंबर इज बैलेंस दिस इज रेस्ट नंबर वी विल गेट द क्वेश्चन। बाकी के जितने भी नंबर बच जाते हैं वो हमें क्या मिलता है क्वेश्चन मिलता है।
देन आफ्टर वी हैड लर्न द एक्सरसाइज 7.6 में हमें क्या है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना था 10 से डिवाइड करके. देन आफ्टर वी हैड लर्न द स्टोरी सम, दिस आल्सो वी हैड डन आवर लास्ट क्लास. देन आफ्टर वी हैड लर्न द मैथमेटिक्स A for concept and calculation skill, this also we had done our last class. Then mathematics B for a higher skill, this also we had done our last class. So I hope nicely understood lesson number 7. Now look at here lesson number 8. This also we had done in our last class. First we had learned the half. What is the half? When something is divided into the equally two parts is called half. half मतलब क्या होता है, किसी चीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब उसको हम बोलते हैं हाफ बोलते हैं. Then quarter. What is the quarter? When the something is divided into the equally 4 parts, from the 4 parts 1 part is called a quarter. जब हम किसी चीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं क्वार्टर. जब हम उसमें से 1 पार्ट्स हम टेकन करते हैं, लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं 1/4, अदरवाइज वो क्वार्टर होता है, उसको हम बोलते हैं क्वार्टर बोलते हैं. इसको लिखते कैसे है, 1/4, 1/4. इसको रीड कैसे करते हैं, 1/4. Then when something is divided into the equally 4 parts, from the 4 parts we had shaded the 2 parts, so this is called the 2/4, otherwise say that 2/4. Then something is divided into the 4 parts, from the 4 parts we have shaded the 3 parts, is called the 3/4, उसको हम 3/4 बोलते हैं. Then after we had learned the exercise 8.2. Then 1/8. 1/8 मतलब क्या होता है, किसी चीज को 8 पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब उसको बोलते हैं 1/8. 1/8 में से 1 पार्ट्स को शेडेड किया तो वो 1/8 हो जाएगा. 2 पार्ट्स को शेडेड करेंगे 2/8, 3 पार्ट्स को शेडेड करेंगे तो 3/8, 4 पार्ट्स को शेडेड करेंगे तो 4/8 बनता है. Then after we had done the exercise 8.3. Then some other fraction also we had done. Then look at here I have a one circle. That circle is divided into the 3 parts. From the 3 parts we have shaded 1 part, so here coming the 1/3, otherwise 1/3 also we will say. Then here have one circle. That circle is divided into the equally 6 parts. From the 6 parts we have shaded the 1 part, so we say that 1/6, otherwise 1/6 also we will say that. Now look at here I have some circles. 3 circles are there. For that 3 circle is divided into the equally 5 parts. That all circle is divided into the 5 parts. From the 5 parts, first circle is shaded 1 part, then second circle is shaded 2 part, and third circle is shaded in the 3 parts. Then first circle is fraction is coming 1/5, then second circle fraction is coming 2/5, and third number circle is fraction is coming 3/5. So हमें क्या मिलता है, ऐसे फ्रैक्शन मिलता है. देन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, किसको न्यूमरेटर बोलते हैं और किसको डिनोमिनेटर बोलते हैं. 4/11. From the 4/11 we are writing in the denominator how many parts we are divided into the whole. किसी चीज को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और न्यूमरेटर में कितने पार्ट्स को हमने शेडेड किया है वो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं. न्यूमरेटर में कितने पार्ट्स हमने टेकन किए वो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं. मतलब 4/11 में से हमने 11 पार्ट्स डिवाइड किया है और 4 पार्ट्स हमने शेडेड किया है. देन आफ्टर वी हैड डन द एक्सरसाइज 8.4 हमने डन किया है. देन एक्सरसाइज 8.5 आल्सो डन. देन फ्रैक्शन ऑन द गिवन लेन. हियर गिविंग सम लेन, हम एग्जाम्पल देखेंगे एक्सरसाइज 8.6 में से. यहाँ पे लेंथ दी है, डी से लेकर ई तक लेंथ दी, तो ये टोटल लेंथ है, तो हम ये डिनोमिनेटर में लिख देंगे. तो डिनोमिनेटर में हमने डी ई लिख दिया है, और हम न्यूमरेटर में क्या करते हैं, जितने पार्ट्स हमने टेकन किए शेडेड किए, तो कितने पार्ट्स को टेकन किया है शेडेड किया है, डी सी इतने पार्ट्स को हमने शेडेड किया, तो वो हमने न्यूमरेटर में लिख दिया है. ठीक है. अभी डी ई के टोटल कितने पार्ट्स के, 1 2 3 4, तो वो हम डिनोमिनेटर में 4 लिख देंगे. अभी कितने पार्ट्स हमने शेडेड किए, 1 2 3, सो डी सी इज द 3, सो वो हमने
डिनोमिनेटर में लिख दिया तो हमें फ्रैक्शन क्या मिल गया है 3/4 हमें फ्रैक्शन मिल गया. देन आफ्टर वी हैड लर्न द फ्रैक्शन वाज when the denominator is increased that cases that number will be small. जैसे जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाता है वैसे वैसे वो नंबर क्या हो जाता है स्मॉल हो जाता है. अगर आप 1/2 की वॉल देखेंगे और 1/10 की वॉल देखेंगे तो हमें डिफरेंट दिखेगा कि 1/2 की वॉल बड़ी है 1/10 से. तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर का नंबर इंक्रीज हो जाता है वैसे वैसे वो नंबर कैसे हो जाता है स्मॉल होते जाता है. When the denominator is the same, when the denominator is the same, जब किसी नंबर का डिनोमिनेटर सेम होता है उसके से जो भी नंबर बिगर होता है वो बिगर होता है. और जब क्या होता है दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है और न्यूमरेटर सेम होता है उसके से जो भी नंबर स्मॉल होता है वो नंबर बड़ा होता है. और जब डिनोमिनेटर सेम होता है उसके से जो भी नंबर क्या है बड़ा है वो ही नंबर बड़ा होता है. So then after we had learned the exercise 8.7. exercise 8.7 में सबसे पहले क्या है कंपेयर करना था फ्रैक्शन को, फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था नंबर. Then after we had learned the fraction of collection. These also we had done our last class. देन क्वेश्चन नंबर सी दिस आल्सो डन. यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 7, 8 ये मैंने आपको होमवर्क दिया था. आपको 7, 8 बताती 1/2 ऑफ द 10 है तो हम क्या करेंगे 10 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 10 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है हमें 5 आंसर ऐसे मिलता है. देन आफ्टर वी हैड डन द एडिशन ऑफ द लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं. जब लाइक फ्रैक्शन का एडिशन होता है तब क्या करते हैं जो भी नंबर डिनोमिनेटर में होते हैं उसको 1 टाइम लिखते हैं और न्यूमरेटर में जो भी नंबर है उसको ऐड करते हैं. 1/7 और 4/7 में दोनों का डिनोमिनेटर 7 है तो हम डिनोमिनेटर में 7 लिख देंगे और 1 को 4 के साथ मिला देंगे तो आंसर मिलता है हमें 5. तो ये होता है एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन. फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज 8.9 को सॉल्व किया है. वो भी सेम है जो हमने अभी एग्जाम्पल किया है वो सेम है. ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. 3/6 प्लस 1/6 है. नाउ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे. अभी न्यूमरेटर में क्या है 3 और 1 है तो 3 और 1 को मिला देंगे तो यहाँ पे क्या मिलता है 4 मिलता है. तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 4/6. Then after we had learned the subtraction of like fraction. subtraction of like fraction सेम एडिशन की तरह है सिर्फ ऐड के जगह पे हम माइनस करते हैं. like fraction मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है. अभी देखो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में 1 टाइम लिख देंगे और 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलता है 3. तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा 3/9 ऐसे हमें आंसर मिल जाता है. Then after we had learned the story sums on the fraction. These also we had done our last class. Then mathematics A also we had done our last class. So I hope all of you nicely understood our lesson. Then MCQs and question number 5 and 6. These also we had done our last class. So I hope nicely understood lesson number 6, 7 and 8. And all of you all the best for your exam. I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.